स्टार्ट करना चाहूंगा। Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ali Yaqub from Organizational Development Team. I am OD lead. सबको पता है कि corporate HR में हूँ, MTM में, और recently we have undertaken an initiative and launched online sessions. और ऑनलाइन सेशंस के साथ जो है हम गेस्ट रिसोर्स की सीरीज में हमारा आज का ये जो है ये पहला सेशन है, जिसके अंदर हमारे लेट मी शेयर विद यू, I had circulated a brochure and shared the training details with you. The brochure indicated that there will be two trainers. However, let me share with you, in today's session there will be one trainer, and that is on Mehdi. On the introduction I'll be giving you in a while. Firstly, let me share with you the reason behind the absence of the other trainer, Dr. Haja. Dr. Haja का introduction तो आपने डिटेल में ब्रोशर के ऊपर देख लिया रह जाएगा. She is an international resource. She has worked in Pakistan as well. However, since she belongs to the nursing profession and she was supposed to join us from USA, so she had some emergency situation, and she was telling me कल मेरे उनके साथ exchange हुए थे messages कि 180 कोरोना पेशेंट्स हैं जिनको इस वक्त देख रही हैं, and there were some emergency situations, and I hope you guys understand कि उनकी absence बड़ी valid reason है. यहाँ पे ट्रेनिंग देने से ज्यादा जरूरी है कि जहाँ पे जो कोरोना की इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ पे जिसको वो डील कर रही है तकरीबन 180 पेशेंट्स को, वहाँ पे उनका होना जरूरी था. Initially she thought that she will be able to make it and give us and spare some time for us, 45 minutes to 1 hour. But yesterday night something happened and she messaged me, Ali, I am in middle of a mess and there is a terrible situation which she has been dealing with, and then therefore she excludes her absence कि वो नहीं आ सकेंगी. हमने कहा डॉक्टर हाजक कोई बात नहीं, हमें टॉक देने से ज्यादा जरूरत है कि जो लोग कोरोना से फाइट कर रहे हैं पेशेंट, आपकी वहां पे ज्यादा जरूरत है क्योंकि आपका नर्सिंग का, और क्योंकि वो डायरेक्टर नर्सिंग और बड़ी पोजीशन में है तो पूरी टीम को शी इज सपोज्ड टू लीड. तो हमने ग्रेसफुली उनसे कहा कि हम आपको फिर दोबारा से लाइन अप कर लेंगे, स्केड्यूल कर लेंगे, तो नॉट एन इशू. आज की जो ट्रेनिंग सेशन है इसका नाम है title of the today's training session is Human Psychology and Human Anatomy. Human psychology part is supposed to be delivered by Owen, and the other part, human anatomy, role of stress on human anatomy, that was supposed to be delivered by Dr. Haja, but Dr. Haja will not be able to join us, as I have just shared the reason with you. ये वो USA में है और इस वक्त कुछ emergency situations है. I'm repeating myself for the benefit of all those who have just joined us. For the benefit of all those corona patients, 180 corona patients उनके पास हैं जिनको वो डील कर रही हैं, और वहाँ पे कल रात को कुछ सिचुएशन बहुत ऐसी हो गई थी कि she said she might not be able to make it this morning. So very shortly हम डॉक्टर जैसे ही सिचुएशन वहाँ बेहतर होती है हम डॉक्टर हाजा से 1 आवर के सेशन की दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे. So we are left with one module of the training session, and that is the human psychology, or हमारे alignment of the mind and thoughts for positivity. This session is to be delivered by Mr. On Mehdi. I personally know on him. It's been, I think, 10-12 years that we know each other. Off and on के साथ मेरी गपशप होती है, कभी हम प्रोफेशनल चीजों के ऊपर व्यूज एक्सचेंज करते हैं, कभी मुख्तलिफ चीजों के ऊपर. तो मेरा एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑन के साथ है पिछले 10-12 साल के साथ. उनका इंट्रोडक्शन ये है कि माशाल्लाह 25 साल का तकरीबन मोर और लेस एक्सपीरियंस है, और ही अर्न हिज फर्स्ट मास्टर डिग्री फ्रॉम लम्स. MBA उन्होंने लम्स से किया. देन ही वेंट ऑन टू अर्न हिज MSc, मास्टर्स एंड MS in psychology from International Islamic University. In addition to being a sales professional, he is a career counselor, he is a psychologist, और बहुत से बिहेवियर रिलेटेड ट्रेनिंग्स के ऊपर, करियर काउंसलिंग के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर ऑन कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग देते हैं. On has worked for organizations like PTCL, PepsiCo, Coca-Cola, World Bank, and few other organizations. And currently, at present, he is part of Panther Ties as NSM, National Sales Manager, which is fairly a very senior position, leadership position है, और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं. We are thankful to on that he accepted
our invite, our request to be our guest resource for this session. Or I am pretty sure that based on his learning experience, based on his academic background, this is going to be a very fruitful session for all of us. It's not that you guys, I'm thankful to you guys as well, jo aaye hain. It's not you guys. Even I am looking forward to learn a lot from On. So thank you very much, On. The floor is yours now. Assalamualaikum everyone. और हमने सबको अनम्यूट किया है, नॉइज बहुत आता है, तो आपको जवाब सबने दे दिया होगा। मैं अब प्रेजेंटेशन अपनी करना चाहूंगा इस पे, अब शुरू। जी, आप उसकी स्क्रीन शेयर कीजिए। आपके पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, हमारी तरफ से आपको वो राइट से है, आप उसको स्क्रीन शेयरिंग पे कीजिए। That is great. इसको बिगर व्यू में ले आए आप। I can see it on. सही हो गया? जी बिल्कुल सही हो गया। ऑन हम एक अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट्स को हमने इसलिए म्यूट किया है कि नॉइज और डिस्ट्रप्शन बहुत होती है। हम अनम्यूट उन लोगों को करेंगे जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आएंगे। मीनवाइल अगर कहीं डिस्ट्रप्शन हुई, आपकी वो वॉइस ब्रेक हुई या आपकी प्रेजेंटेशन कहीं नहीं आ रही होगी, तो वो फीडबैक मैं आपको देता जाऊंगा ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल दैट। नाउ प्लीज गो अहेड विद योर प्रेजेंटेशन। जब तक आप लोग म्यूट पे रहेंगे, आई होप आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल जरूर है। हो सकता है मैं आप ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कोई आपसे कोई छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग करें, तो आपने सिर्फ वो लिख के तो कैमरा के सामने अपना जवाब आपने कर देना है। अदरवाइज मैं आई जस्ट गो विद शो ऑफ हैंड्स, यस और नो के लिए आई विल जस्ट गो फॉर शो ऑफ हैंड्स। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। जैसा कि आपको अली याकूब ने बता दिया है कि इट्स ऑल अबाउट अलाइनिंग माइंड्स एंड थॉट्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में किन किन लोगों ने सुना हुआ है या थोड़ा बहुत सोचा हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड्स। गुड। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है बेसिकली इसको कहते हैं कि जी ये एक मुस्बत रवैये के बारे में है, और मुस्बत रवैया एक अच्छी चीज है जो इंसानों में होना चाहिए। तो देखें, आप मुस्बत रवैया काफी चीजों से आता है। अभी आप एक छोटी सी पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें कंप्लेंट्स के आगे काफी लंबी लाइन लगी हुई है। ये वही लाइन है जो अक्सर बिल की आखिरी दिनों में बैंक के बाहर लगी होती है, और एक लाइन है जो बिल के पहले दिन में होती है जिसमें लोग बहुत कम होते हैं, और इधर तो कोई है ही नहीं। अब ये लाइन है ग्रेटिट्यूड की। तो आपने भी देखा होगा कि ग्रेटिट्यूड नॉर्मली हमारी जिंदगियों के अंदर काफी कम होता है। मैं बाय एंड लार्ज बात कर रहा हूँ, कई लोगों के जिंदगी के अंदर ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा शामिल होता है, और आप उनको देखेंगे कि जब भी उनके ऊपर जिंदगी में कोई इम्तिहान आता है तो वो उसमें भी एक सब्र और शुक्र के पहलू वो निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, क्योंकि एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मेरे मामू थे, ही डाइड एट द एज ऑफ 92। तो अराउंड 85, एट द एज ऑफ 85 ही फेल डाउन। उनकी हिप जो ना वो बोन ब्रेक हो गई, उसकी वजह से उनको चलने में इश्यूज आए, और जिंदगी का आखिरी 4 साल उन्होंने बेड पे गुजारे। बेटे उनके बाहर होते थे। एक दफा मैं उनके घर गया, उनको एम्बुलेंस में और स्ट्रेचर में डाल के हॉस्पिटल ले जाना था फॉर चेकअप। खैर पेमेंट्स मैंने की, सारा कुछ किया। वो एम्बुलेंस ने आना था, बेड से उठा के स्ट्रेचर, स्ट्रेचर से एम्बुलेंस, फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी स्ट्रेचर पे लेट के उन्हें जाना था। तो मैं ये सारा कुछ सोच के और काफी डाउन हुआ, तो मैं उनके पास जाके बैठ गया। तो मैंने कहा, कहने लगे क्या बात है? मैंने कहा मामू बस आपको हमने काफी एक्टिव देखा है, तो आप जरा, तो कहने लगे यार देख अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने सोचा कि इस कंडीशन में उनको मतलब क्या चीज है जिसको देख के वो उनको अल्लाह का शुक्र याद आ रहा है। मैंने कहा वो तो आपकी बात सही है। कहने लगे यार देख, मेरा अपना घर है, सर पे मेरी अपनी छत है, अच्छे अल्लाह ने केयर टेकर दे दिए, मुझे और क्या चाहिए? तो एंड ही वाज नॉट जस्ट सेइंग इट, वो जिस तरह जिस पॉजिटिवली उन्होंने बात की ना,
तो बेड के ऊपर लेटे हुए भी मैंने कभी जब भी उनसे मिलने गया हूँ, आई नेवर सॉ हिम कंप्लेनिंग कि यार ये क्या हो गया, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो उस सिचुएशन में रह के व्हाट बेस्ट ही कुड डू ही वाज डूइंग। तो ग्रेटिट्यूड जो है ना, ग्रेटिट्यूड का एक इंसान की जिंदगी में, इंसान की सेहत के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और उनको दवाइयाँ जितनी भी दी जाती थी उसमें कभी भी उनको डिप्रेशन की दवाई जो है ना, वो एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ कभी भी नहीं दी गई। तो ही रिमेन्ड वेरी पॉजिटिव टिल हिज लास्ट ब्रेथ। आप ये देखिए कि those who think positive thinking is good, please raise your hands. ये बताइए कि tell me one good thing which with you today of which you should be thankful and you are thankful. कोई एक चीज आपके जहन में आती है? हाथ खड़ा करने को आज बताए, जिस उसको हम अनम्यूट कर देंगे क्योंकि सब लोग अनम्यूट है ना, तो बोल आपको आवाज नहीं आएगी। कर दें, 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर दें। 1 मिनट के तरह अनम्यूट करें सबको। और प्लीज बोलना आपने उस वक्त है जब आप यू विल रेज योर हैंड। मैं अच्छा आई विल जस्ट कॉल नेम। आ रहे हैं 1138 नंबर। अच्छा, सवाल ये है कि आज के दिन के लिए आपके जहन में कोई ऐसी चीज आती है? शुरू से लेजर नहीं ना आ रहा, उसमें चेक डालें आप। उस्मान हफीज। शुरू से लेजर नहीं ना लेजर आप। उस्मान, कैन यू हियर मी? ये उस्मान हफीज, उस्मान हाफिज। आने किस पे आप पे लिए हम, हमारा डॉक्यूमेंट आपके पास गया है तो उसकी बेस पे लिए हैं या वैसे लिए? उस्मान हाफिज, ये देख रहे हैं, ये तो जुलाई 18 आज हम बिल्कुल है सर। से पिछला लेजर थे, हम चेक कर लेते हैं आपके डबल नोट ये डले हुए। आई थिंक ट्रेनिंग के साथ साथ कोई काम भी कर रहा है, तो 388 क्या आपकी वो पेमेंट बना दी आप। अब ये 2 मिलियन तो नहीं ना, आपका 6 जाहिद अशरफ। डू वी हैव जाहिद? जाहिद, कैन यू हियर? यस साहब जी जाहिद, डू वी हैव जाहिद? यस नासिर महमूद। यस अगले 10 दिन की जी नासिर साहब। तो बिफोर ईद कर लेते हैं ना सर। वो भी डबल नोट के अगेंस्ट हुई है नासिर साहब। जी नासिर जी नासिर साहब, आपके जहन में कोई चीज आती है जिसके लिए आपको आज शुक्रगुजार होना चाहिए? वहीं से कटिंग हुई होगी, उसका डबल नोट होगा। के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। नहीं इतना हमारे पास टाइम किस नहीं चीज है। के आपने लिए? 635 समय का 635 का हमने अपने लैजिक के साथ कर लिया क्योंकि हमारे लैजिक बोलिए। 388 आ रहा है। मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरी अब फैमिली हमारा लेजर बैलेंस 0 और हो मेरी हर माशाल्लाह, वेरी गुड। आपकी ये पेमेंट। जो वो चीज मेरे पास अब आपका जो 2 मिलियन आ रहा है ना, अली इनको म्यूट करवा दें आप। किसकी? जी हम म्यूट कर रहे हैं। बताएं कौन सी जी अब आप ऑन जिसको कहेंगे हम उसको अनम्यूट कर देंगे। तो नासिर साहब ने कहा कि जी मैं शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के, जिस जिंदगी के लिए घर में जो अमन सुकून है। देखें, हर एक इंसान को जो पॉजिटिविटी है, अपना दिन जो है ना, और दिन की अक्सर औकात के अंदर जो चीजें अच्छी हैं उसके साथ उनको सोचना भी चाहिए और अपना दिन उस थॉट के साथ भी शुरू करना चाहिए। देखिए, अभी जिस तरह नासिर ने बात की, एक तो पहली चीज ये है कि माशाल्लाह हो सकता है कोई किसी की तबीयत आज ठीक ना हो। सबसे अच्छी चीज एक तो ये है कि जी हेल्थ, सेहत के साथ सब लोग बैठे हैं। सो दिस इज वन गुड थिंग which we should all be thankful। और सेहत बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी चीज है यू स्टिल हैव टाइम। वक्त जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। हैविंग टाइम का मतलब ये है कि आपके पास सेहत भी है, आपके पास वक्त भी है, आप अपने लिए चीजें प्लान कर सकते हैं। आप अपने लिए कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी एक्टिविटी अपने प्रोफेशन के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लेजर के लिए, अपनी फैमिली की रिक्रिएशन के लिए, यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव हेल्थ, यू कैन मूव अराउंड, यू हैव रिसोर्सेज। तो आपके पास वक्त भी है, आपके पास सेहत भी है। सो दिस इज वन वेरी गुड थिंग कि जो अगर कोई भी अगर सोचे तो उसके लिए शुक्रगुजारी के लिए चीज आ सकती है। एंड देन जो सबसे बड़ी चीज है वो गुड मेंटल हेल्थ है। कई लोग खुदा
कई दफा होता है किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसमें उनको दिमागी चोट लग जाती है, उसकी वजह से उनको मसले शुरू हो जाते हैं। कई लोग डिप्रेशन की एक्यूट स्टेज में चले जाते हैं, उनके लिए निकलना जो है ना वो एक अलग उसका एक तरीका होता है। तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, यू हैव गुड फिजिकल हेल्थ, आपके पास टाइम है, तो ये सारे इंडिकेटर हैं एक ऐसी चीज के जिसके इंसान को अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि मेरे पास अभी भी वक्त है, मेरे पास अभी सेहत है, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दोस्तों से बात कर सकता हूँ, मैं रिक्रिएशन कर सकता हूँ, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने घर वालों के लिए, अपने लिए खुशी लेके आ सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ, खेल कूद सकता हूँ, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें हैं कि जो लोगों के पास मौजूद होती है, मगर उसके बावजूद भी लोग डिप्रेस रहते हैं, और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। अब जो चीजें आपके पास अच्छी हैं, जो अच्छी हो रही हैं, उनको जहन में लाना चाहिए और उनको यूटिलाइज करते हुए जिंदगी के खुशगवार लम्हात की तरफ जाना चाहिए। देखिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये देखिए कि आप इसके अंदर पहली हिंट ये है कि समर सीजन आ रहा है, दूसरा कि नए नए फल भी आएंगे, तीसरा है फ्रूट क्रॉप्स, जो फलों के दरख्त हैं या फल हैं वो पक रहे हैं, शुगर आपको पता है मीठी होती है। आपके जहन में कोई फल आ रहा है? बिलाल यूसुफ से पूछिएगा जी। बिलाल यूसुफ को अनम्यूट करेंगे। जी ऑन सवाल कीजिएगा बिलाल से आप अपना। जी बिलाल, ये आपको फल कोई जहन में आता है? आपकी गर्मियां हैं, नए फल आ रहे हैं, शुगर जो है आपको पता है चीनी मीठी होती है, फल कौन सा आता है जहन में आप? बिलाल आपको आवाज आ रही है? आप बता दिए, आपने कॉल पॉइंट उठाया, आपको मैंने अनम्यूट भी कर दिया। जी ब्लू आपने शर्ट पहनी हुई है। जी जी 1807 जी जी जी। एक सीजन भी, अब जो अपकमिंग सीजन है उसके लिए फ्रूट तो मैंगो ही आ रहा है फिलहाल। मैंगो आ रहा है। अच्छा, अब ये देखें, स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है स्टिल, अभी पपीता भी अवेलेबल है, बाकी वाटरमेलन आ चुका है, और देख लें अपकमिंग में तो और कोई नहीं आ रहा मेरे पास। सही है। तो आम आपके जहन में आया। देखिए, थॉट्स जो है ना, अभी जैसे मैंने ये स्लाइड आपके साथ शेयर की है, इस स्लाइड का रंग पीला है, शुगर भी मैंने इसमें मेंशन कर दी मीठी होती है, तो थोड़ी सी इंडिकेटिव थी ये स्लाइड टुवर्ड्स मैंगो। तो ये स्लाइड इसलिए थी कि इंसान की जो थॉट्स हैं या उसका जो जहन है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है मुख्तलिफ चीजों के साथ। तो अब ये देखें कि जो थॉट्स हैं, क्या आप समझते हैं कि वो इन्फ्लुएंस की जा सकती है? एक इंसान जो अपनी सोचों में बैठा हुआ है, क्या उसकी थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? थॉट्स को चेंज किया जा सकता है, उनकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है? बिलाल जो समझते हैं यस प्लीज ये जो है। पॉजिटिव नोट पे किया जा सकता है उसको। ओके, चेंज किया जा सकता है। अच्छा देखिए, इंसान की सोच को चेंज किया जा सकता है, पॉजिटिवली भी चेंज किया जा सकता है और नेगेटिवली भी चेंज किया जा सकता है। अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो इंसान की सोच के ऊपर असरअंदाज होती है? नंबर 1, एजुकेशन। जिसको आप जिस तरह की तालीम देंगे, जिस तरह के फैक्ट्स बताएंगे, उसके हिसाब से उसके जहन के ऊपर असर आता जाएगा। जैसे पॉजिटिव एजुकेशन होगी, अच्छी बातें आप उसको बताएंगे, जहन पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव बताएंगे, जहन नेगेटिव जाएगा। फिर न्यूज है, जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं कोरोना की, अगर हम बात कर लेते हैं तो देयर आर कई ऐसी खबरें आपके पास आती है, कई न्यूज आपके पास ऐसी आती है कि जो इतनी रिलायबल नहीं होती। तो उससे अगर नेगेटिव न्यूज होगी कि वबा फैलती जा रही है और इसका तो अगले इतने अरसे में रुकने का इम्कान नहीं है और लॉकडाउन को नरम कर दिया है, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा, तो क्या होगा इम्पैक्ट जहन के ऊपर? तो इसका इम्पैक्ट लोगों के लोगों के जहन के ऊपर बहुत नेगेटिव होगा। लोग अच्छा नहीं सोचेंगे, लोगों के अंदर परेशानी पैदा होगी। लोगों को परेशानी पैदा होगी तो लोगों के जो एक्शंस हैं उनके अंदर आपको परेशानी नजर आएगी। लोग
एक्स्ट्रा जो केयर है वो करना शुरू कर देंगे। और अगर आपको ट्रू फैक्ट्स बताए जाएं कि नंबर इतना है, अभी इतना ग्रो नहीं कर रहा, सिचुएशन इज कंट्रोलेबल, तो फिर क्या होगा कि लोगों के एटीट्यूड्स जो है वो थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, लोगों के अंदर घबराहट और फियर फैक्टर जो है वो नहीं आएगा। इसी तरह ट्रैवल है या जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, अगर किसी का लाइफ ट्रैवल या कहीं आप गए हैं, वो ट्रैवल आपका अगर पॉजिटिव रहा है, आपने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया है, तो उसकी आपकी थॉट्स के ऊपर बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा। खुदा न खासा ट्रैवल एक्सपीरियंस में कोई बुरा इंसिडेंट हो जाए तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है। इसी तरह दोस्त हैं, अब आप लोगों के भी देखें, दोस्तों के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं। कई लोग होते हैं कि वो बहुत जिंदा दिल होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि इंसान की परेशानी में इजाफा करते हैं। मुझे याद है कि एक सिचुएशन थी, उसमें मेरा दोस्त था, वो उसका शिकार था, तो वो ये कहने लगा कि यार मैं जब उससे मिलने गया तो उसकी बातों से मुझे लगा कि जिस तरह वो परेशान था, वो उससे ज्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा क्या बात है, कोई मजीद नई चीज आई है? उसने कहा नहीं यार, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके पास गया हूँ तो उसने तो मुझे जो मेरे जहन में परेशानी थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे जहन में डाल दी है। तो कई ऐसे दोस्त भी होंगे कि जो खुद, जिनका एक पर्सनैलिटी है, वो उसमें पेसिमिज्म काफी ज्यादा होता है, नेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर उनके पास जाएंगे तो वो कोई परेशानी दूर करने के बजाय उसकी परेशानी के अंदर इजाफा ही करते हैं। तो और इसी तरह अगर कोई दोस्त है जो चीजों को लॉजिकली या रैशनल के हिसाब से देखता है, उसके पास जाएंगे तो आपकी परेशानी में कमी भी होगी और आपको उससे निकलने का रास्ता भी बताएगा। इसी तरह इमेजेस हैं, अगर खौफनाक इमेजेस होंगे, जहन के ऊपर बोझ पड़ेगा, नेगेटिविटी आएगी। अगर अच्छे इमेजेस हैं, जहन खुश होगा, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, अगर आप मिसाल ले लें, आप 2 घंटे महमूद बूटी गुजार के आ जाएं, वहां पे सारा वो डंप यार्ड है, कूड़ा कचरा सारा कुछ, और इसके बरक्स 2 घंटे आप मार्गला की पहाड़ियों पे आप ट्रैकिंग करके आ जाएं, हाइकिंग करके आ जाएं, तो आपके मूड के ऊपर कितना फर्क होगा। एक वो इंसान की जो 2 घंटे महमूद बूटी गुजार के आया है, और एक वो इंसान की जो मार्गला की पहाड़ी के ऊपर हाइकिंग की है, उसने चले 1 घंटा 1.5 घंटा किया, वहां बैठ के उसने चाय भी पी है, तो दोनों का जहन, दोनों की पॉजिटिविटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इंसान का जहन जो है और उसकी जो सोचें हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो ये स्लाइड आपको दिखाने का मकसद या इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है, यू शुड बी अवेयर कि अगर आपका मूड अगर बहुत खराब है या बहुत ज्यादा डाउन है, तो आप इसको थ्रू हेल्प, थ्रू डिफरेंट मीन्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यू कैन चूज टू गो टू अ फ्रेंड, यू कैन चूज टू गो टू अ गुड प्लेस, यू कैन चूज टू गो टू अ प्लेस विच यू लाइक, और वहां बैठ के आप चाय वाला पी सकते हैं। या एडवाइस है, किसी दोस्त से आप एडवाइस ले सकते हैं कि यार मुझे ये ख्यालात आ रहे हैं, दोस्त है, बीवी है, कोलीग है। इसी तरह जो गाइडेंस है या मैसेज है, किसी का आपने कोई कॉल पढ़ लिया, किसी की आपने कोई स्पीच सुन ली, उससे भी इंसान के मूड के ऊपर एक असर होता है। तो ये पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए कोई ये ना सोचे कि जी मेरा इस वक्त जहन परेशान है तो अब क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू, और ये वो चीजें हैं कि जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी और इससे आपका रास्ता भी निकलेगा। अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं? आपको जी और सब मेरे लोग साथ हैं? साथ हैं। आपको आपकी बात क्लियरली हमें आ रही है, बिल्कुल। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं आपको? वेरी गुड। अब ये देखिए जी, थॉट का जो इम्पैक्ट है, कोई भी थॉट हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसका ताल्लुक बायोलॉजिकल नीड से हो, भूख से हो, या किसी रिलेशनशिप से हो, होता क्या है? इट स्टार्ट्स विद अ थॉट। अच्छा, थॉट कैसे पैदा होती है? एक इंसान के जहन में पहले से कोई चीज होगी, या इंसान ने कोई तस्वीर देखी होगी, या कोई चीज आप सोचेंगे, या कोई चीज आपको इंसान बताएगा, तो पहले ही जो चीज आती है वो होती है जी थॉट। थॉट के बाद एक फीलिंग डेवलप होती है। आप गए, आपको भूख लग रही है, या बरसात का मौसम है, गरम गरम पकौड़े डाले जा रहे हैं, आप पहली चीज ये है कि आपने देखा, फिर आपको फीलिंग डेवलप हुई कि नहीं मुझे कुछ खाना है, ये तो गरम गरम ताजा ताजा पकौड़े हैं। फिर क्या हुआ? फिर आपके अंदर एक डिजायर पैदा हुई कि नहीं मैं खरीद लेता हूँ। फिर आपने इंटेंट किया, अच्छा ठीक है मैं रुक जाता हूँ। फिर आपने एक्शन किया, आपने वो चीज ले ली। तो कोई भी इंसान
कोई एक्शन लेता है या आपने जिंदगी के अंदर कोई अचीवमेंट की होगी, वो इस प्रोसेस से हट के नहीं की होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि आपने जिंदगी में कभी कोई चीज अचीव की इस प्रोसेस से हट के की? मैट्रिक में अगर अच्छे नंबर लिए इस प्रोसेस से हट के लिए, एक थॉट आई होगी कि भाई नंबर अच्छे लेंगे तो पढ़ाई करेंगे तो नंबर अच्छे लेंगे, या किसी ने कोई तरक्की की है तो ऑफिस में तरक्की की है, या कोई टारगेट्स अचीव किए हैं, कोई अच्छी कैंपेन बनाई है, क्या इस प्रोसेस से हट के की है? नहीं की। सो इसका प्रोसेस यही है कि थॉट आएगी, फीलिंग होगी, डिजायर, एक्शन, इंटेंट, तो तब जाके रिजल्ट्स अचीव होते हैं। तो इसको जहन में रखिएगा। अब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ आते हैं कि पॉजिटिव थॉट क्या है। जो हम पॉजिटिव अलाइनमेंट ऑफ माइंड्स की हम बात करें, पॉजिटिव व्हाट इज पॉजिटिव थॉट्स? पॉजिटिव थिंकिंग, अब यहाँ पे अंग्रेजी की 3 इसमें है लाइनें। पॉजिटिव थिंकिंग एक्चुअली मीन्स अप्रोचिंग लाइफ चैलेंजेस विद पॉजिटिव आउटलुक। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर इंसान एक टारगेट उसने अचीव करना है और टारगेट आपको लग रहा है भाई थोड़ा मुश्किल है, सेल्स का नंबर आना मुश्किल है, या रेवेन्यू इतना जनरेट करना मुश्किल है, या नंबर ऑफ कस्टमर्स को बढ़ाना मुश्किल है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार ये तो हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये कतई नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि जो भी चैलेंज आपके सामने हो, आप ये सोचें और समझें कि मैंने इसको अचीव करना है, तो कैसे अचीव करना। ये जहन में ना आए कि जी ये तो बहुत मुश्किल टास्क है, ये कैसे होगा, ये तो समझ नहीं आता कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो पॉजिटिव जो थॉट है, पॉजिटिव जो थिंकिंग है, वो किसी भी सूरत ये नहीं कहती कि आपके सामने जो चैलेंज है या कोई परेशानी है उसको आप पसे पुश डाल दें और आप ये कह के यार ये तो हो जाएगा, बस ये ठीक ही होगा। कुछ लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है ये, वो ये समझते हैं कि यार ये हो जाएगा, जब वो चीज नहीं होती फिर कहते हैं ये तो किस्मत खराब। तो पहला रूल पॉजिटिव थिंकिंग का ये है कि आपने जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको बारे में आपने ये देखना है कि लाइफ का एक चैलेंज आ गया है, इसको मैंने ओवरकम कैसे कर। दूसरी, इट डज नॉट नेसेसरली मीन अवॉइडिंग और इग्नोरिंग द बैड सिचुएशन। ये जो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग द मोस्ट ऑफ पोटेंशियली जो भी बैड सिचुएशन है उसमें आप अच्छा कैसे कर सकते। अब माशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान की जो एक मशहूर गेम है क्रिकेट है, क्रिकेट में हम हमेशा यही कहते हैं कि यार ये जो बंदा आते ही उसने छक्का मारने की कोशिश की है, यार छक्का मारने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ रोकता रहता, 1 रन 2 रन वो करता रहता। तो हम उस बैड सिचुएशन को हम लोग घर बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं, इस बैड सिचुएशन में इसको ये करना चाहिए था, बजाय ऐसे कि अपनी विकेट फेंक के आ जाता। तो बैड सिचुएशन को जितना आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, यही मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग का। viewing yourself and your abilities as कि आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप उसको पॉजिटिवली अचीव कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे, डॉक्टर जे पीटरसन है, बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं कनाडा के। उनका ये कहना है, उनकी एक बुक है 12 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्प। कि आप अपने आप को ऐसे ट्रीट करें कि जैसे आप किसी एक शख्स की मदद करें। तो उसमें आप उसको अच्छा मशवरा भी देंगे, कोई ऐसी चीज है कि किसी से कंसल्ट करना हो आप कंसल्ट भी करेंगे, उसको आप कहेंगे यार अच्छा आज ये करो, आज जितना कर सकते हो करो, कल जितना कर सकते हो वो करो, उससे आगे जितना कर सकते हो करो। तो चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ही अचीव होती है, एकदम से नहीं हो जाता कि यार ये एकदम से कैसे होगा, एकदम से कभी कुछ नहीं हुआ। कोई भी क्रिकेटर, कोई भी बड़ा स्पोर्ट्समैन, आप उसकी कोई बड़ा एक्टर, उनकी आप स्ट्रगल देख लें। क्या वसीम अकरम ने जो पहली गेंद कराई थी वो परफेक्ट यॉर्कर थी? नहीं थी। तो उसने वक्त के साथ सीखा। क्या वसीम अकरम को छक्के नहीं पड़े? उसने वक्त के साथ सीखा कि मैंने एक आखिरी ओवर में अच्छी बॉलिंग कैसे करनी है। बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इसको हम ऑप्टिमिज्म की बात भी करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्यों एक इंसान को पॉजिटिवली सोचना चाहिए। देखिए, पहला तो उसका इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑप्टिमिज्म, एक तो ये है कि इट गिव्स यू एनर्जी। अब हमने पहले बात की कि जी आप यू शुड बी थैंकफुल ऑफ आप हेल्दी हैं। एक वो इंसान के जो हेल्दी भी है, माशाल्लाह सब कुछ चलता फिरता है, अगर उसमें एनर्जी ना हो, एनर्जी मतलब उसके अंदर ख्वाहिश ही ना हो कुछ करने की, तो उसकी सेहत उसको फायदा नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिव बातें सोच के, ये सोच के कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मर गए लुट गए।
वो सोच के उसने अपने आप को इतना डाउन कर लिया है कि वो अब कोई एक्शन लेने पे जाना ही नहीं चाह रहा, या उसको अंदर से एक डिजायर ही नहीं मिल रही। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो इट गिव्स यू एनर्जी कि हाँ ये एक अच्छी चीज हो सकती है और मैंने ये करनी है, तो आपको एक एनर्जी मिलती है। दूसरा, इट गिव्स यू पर्पस, गोल एंड डायरेक्शन, कि एक पर्पस है, हाँ मैंने कुछ करना है, एक गोल है, मैंने एक चीज अचीव करनी है, एक डायरेक्शन है, मैंने एक डायरेक्शन में जाना है, मुझे उस तरफ जाने से कुछ मिलेगा। बरक्स के एक बंदा ये सोच के बैठा हुआ कुछ होगा ही नहीं, क्या करने का फायदा, ये तो जी ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही, कुछ होने का कुछ होना ही नहीं है। अब मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ और वहां के ऊपर जो आप समझ लें जो नेगेटिविटी का लेवल था ना, वो ऐसे उस पे था, वहां पे लोग ये कहते जी और साथी तुसी जो मर्जी को लोग कहते कुछ होने नहीं लगा। जब ये जहन में सोच आ जाए तो आप क्लियरली अब सोच सकते हैं कि जब ये बंदा सोच ले कि जी आप कुछ ही कर लें, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, क्या वो कुछ करेगा? प्लीज मुझे बताएं हाथ हिला के कि नहीं करेगा। जिसने सोच लिया कुछ हो ही नहीं सकता, वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा। तो इट लीड्स टू एक्शन। जब पॉजिटिव थिंकिंग की हम बात करते हैं तो इट लीड्स टू एक्शन। हाँ कुछ हो सकता है, मैं कुछ करता हूं। फिर जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो यू गेन, आपके बेबी स्टेप्स हैं, इंसान गेन करना शुरू कर देता है, ऑप्टिमिज्म आता है कि हाँ कुछ हो सकता है, होप, उम्मीद आती है कि हाँ ये हो जाएगा। ओवरऑल प्लेजेंट मूड और बिहेवियर इंसान का बनता है। जब ओवरऑल आपका बिहेवियर अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा, तो आपकी जिंदगी के बाकी इंटरेक्शंस भी अच्छे होंगे। अभी माशाल्लाह काफी लोग शादीशुदा भी होंगे, बाल बच्चे भी होंगे। कई दफा आपने देखा होगा घर गए हैं, अगर आप दफ्तर से परेशान गए हैं तो बगैर वजह के बीवी से भी लड़े हैं, बच्चों को भी डांटा है। प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने ये चीज एक्सपीरियंस की है। और किसी ने एक्सपीरियंस किया है जब आप टेंस होते हैं, घर जाके इंसान लड़ भी पड़ता है, बच्चों को डांट भी देता है? किसी ने एक्सपीरियंस किया जी? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने एक्सपीरियंस किया है किसी ने ये। सही है। तो देखें, एक इंसान के मूड का उसके ऊपर भी असर होता है और उसकी जो सराउंडिंग्स है उसके ऊपर भी असर होता है। तो अच्छा मूड होगा, प्लेजेंट मूड होगा, आउटकम प्लेजेंट होगी, प्लेजेंट नहीं होगा तो आउटकम कोई प्लेजेंट नहीं होगा। नेगेटिव थिंकिंग, हम पेसिमिज्म की बात करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग इज अ थॉट प्रोसेस वेयर पीपल टेंड टू, जिसमें लोग ये समझते हैं कि believe of worst in everything, reduce their expectations by considering कि जी worst possible scenarios, कि ये तो बुरा ही होगा जी। लोग एक चीज जहन में बिठा लेते हैं या यकीन की हद तक बिठा लेते हैं कि जी ये नहीं हो लगा, आप जो मर्जी कर लें ये नहीं होगा। मैंने प्राइस बॉन्ड ये बातचीत चल रही थी ऑफिस में, क्योंकि वो बिजनेस है, उसमें कई चीजें आप इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। डॉलर ऊपर चला गया तो बात हो रही थी कि ये डॉलर अब नीचे कैसे आएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि जिस दिन हमने डॉलर खरीद लिया उस दिन डॉलर नीचे आ जाएगा। तो कुछ लोगों का माइंडसेट जो है ना वो यही होता है कि जी हमने अगर कोई काम किया, कोई काम शुरू किया तो फौरन उसमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सो पीपल यूज्ड टू थिंक कि जी जिस दिन मैंने डॉलर ले लिया ना उस दिन आप बस समझे डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो एक ये माइंडसेट भी लोगों का है कि हमने काम शुरू किया तो नुकसान शुरू हो जाएगा। फिर आप ये देखें नेगेटिविटी के अंदर और काफी सारी चीजें हैं। फ्रस्ट्रेशन आती है, जेलसी आती है, डाउट्स आते हैं, एनवी होता है, डिस्पेयर, डेस्परेशन, गिल्ट, सेल्फ ब्लेम, बहुत सारी चीजें होती हैं। और नेगेटिविटी एक और भी चीज होती है कि विच इज ऑपोजिट, जो आप समझते होना चाहिए उसका ऑपोजिट, कि ये तो खैर शायद ना हो, जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि शायद वो नहीं होगा। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि ये पेसिमिज्म या नेगेटिव थिंकिंग का कोई फायदा है? कोई समझता है कि नेगेटिव थिंकिंग का कोई फायदा है? अगर कोई समझता है प्लीज रेज योर हैंड। किसी को लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग का कुछ फायदा है? जाहिद अशरफ साहब,
ये कोई जाहिर फायदा है नहीं है, सिर्फ- स्ट्रेस ही कोई फायदा नहीं है, स्ट्रेस ही ज्यादा होगी इसकी। अच्छा मैं आपको बताऊं, नेगेटिव थिंकिंग या पेसिमिज्म का फायदा है, आपको बैलेंस रखना है। राइट साइड पे समझे पॉजिटिव थिंकिंग है, लेफ्ट साइड पे समझे नेगेटिव थिंकिंग है। सो यू हैव टू कीप अ बैलेंस। किस तरफ जाएंगे? जाएंगे आप लड़कियों की साइड पे नहीं जाना, पॉजिटिव थिंकिंग की साइड के ऊपर जाना है, ठीक, जो आपकी राइट साइड के ऊपर है। तो ये मैं आपको बताता हूँ फायदा क्या है इसका। फायदा ये है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बाबरा, पीएचडी और वहां पढ़ाती भी हैं, वो ये कहती है नेगेटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव इमोशंस हैव देयर प्लेस। ये खतरे में, मुश्किल सिचुएशन में इंसान को ऑप्शन सोचने के ऊपर मजबूर करता है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो अगर हम स्टोन एज की बात करें, क्योंकि वहां उस वक्त इतनी प्रोटेक्टेड लाइफ नहीं थी, जंगली है मतलब जानवर भी थे, सारा कुछ था। तो वो जब आपने अपने बचाव के लिए चीजों का बंदोबस्त करना हो तो उसमें पेसिमिज्म या जो थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग है वो जरूर हेल्प करती है। अगर ना हुआ तो क्या होगा? अब जैसे मैं आपको आज ही की मिसाल देता हूँ, अली ने मुझे कहा कि ऑन आपका सेशन जो है, शुरू में जब बात हो रही थी उन्होंने कहा आपका सेशन होगा 30 मिनट्स का और कोई 10-15 मिनट हम Q&A पे लगाएंगे। फिर अली का मुझे मैसेज आया कि जी इट कैन गो अप टू एन आवर, या 10-15 मिनट ऊपर भी जा सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें मैंने जो 30 मिनट की तैयारी की थी, क्या मैं वही तैयारी करके ले आता आपके पास इस होप के साथ कि इसी में 60 मिनट्स गुजर सकते हैं? नहीं। जो इसमें जो नेगेटिव थिंकिंग मेरे जहन में आई, या आप समझ लें कि जिस चीज ने मुझे थोड़ा पावर किया कि नहीं मुझे और मटेरियल ऐड करना है और इसको बीफ अप करना है, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम खत्म, टाइम रह जाए और मेरे पास मटेरियल ना हो। तो जो आप समझ लें पेसिमिज्म है या नेगेटिव थिंकिंग है, या एक चेक आप डालते हैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर कि कहीं कहीं ये चीज कम ना हो जाए। एक रिसर्च है जो डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन ने की थी, और वो देखें बिहेवियर हर तरह का होता है, कई लोग बहुत पेसिमिस्ट होते हैं, कई लोग बहुत ऑप्टिमिस्ट होते हैं। उन्होंने कहा था कि जो दुनिया के बेहतरीन लॉयर्स हैं, यूएस की उन्होंने बात की थी, यूएस के बेहतरीन लॉयर्स के अंदर मेजॉरिटी वो लोग हैं जो पेसिमिज्म, जिनके अंदर पेसिमिज्म ज्यादा होता है, जो कंपैरेटिवली पेसिमिस्टिक थोड़े ज्यादा होते हैं। जो पेसिमिस्टिक होता है वो क्या करेगा? वकास पेसिमिस्टिक लॉयर कामयाब क्यों होता है? क्या वजह आपके ज़हन में आती है? पेसिमिस्टिक जो समझे कि नाकामी कि जो नाकामी का खौफ जिसमें थोड़ा ज्यादा हो, कोई वजह आपके ज़हन में आती है? इसरार, हनीफ, आप बताएंगे? जी, क्योंकि अगर आप में पेसिमिज्म ज़्यादा है तो आप इस चीज़ को श्योर करेंगे कि आप जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आपके, उसमें आप अपने एक बनाएंगे कि ये चीज़, इसमें कोई भी आप काम करने लगे हैं तो उसमें ये नेगेटिविटी आ सकती है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उस चीज़ को मेजर्स करके आप आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। नासिर साहब आप बताएंगे? आप, यू रेज योर हैंड। मोरलेस ये जवाब तो इन्होंने दे दिया है इसरार साहब ने। मेरा ये पॉइंट था कि हमेशा जो नेगेटिविटी है वो रहती है, लेकिन उसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आप का जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये वहाँ पे इस्तेमाल होती है। जैसे आपने अपनी मिसाल दी ऑन साहब के, आपको जो आधा घंटा दिया गया, अगर आप उसी को लेके चलते तो आप 1 घंटा हमें ट्रेन ना कर पाते। ऑब्वियसली आपने उस नेगेटिविटी जो आपके जहन में आई वो आपने उसको सोच करके अपनी चीज़ें और एक्सटेंड की,
और अब आप हमें 1 घंटे के लिए जो है वो इस पर ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड है चीज़ें, लेकिन बैलेंस आउट करके चलना चाहिए इनको, और पॉजिटिव वाली साइड पे ज़्यादा रहना चाहिए। वेरी गुड। तो देखिए जो जो पेसिमिस्टिक लॉयर्स हैं वो एक जो उसमें जो एलिमेंट ऑफ डिफीट है या नाकामी का एलिमेंट, वो ये देखते हैं कि और क्या चीजें हैं जो आपका जो मद्दे मुकाबिल का वकील है वो भी कर सकता है, और कौन सा पॉइंट मद्दे मुकाबिल का वकील लेके आ सकता है। मेरा एक दोस्त है, उसने MBA के अंदर उसकी 2nd पोजीशन आई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसकी भी पर्सनैलिटी के अंदर पेसिमिज्म थोड़ा है। तो वो ये कहता था कि यार मैं तकरीबन 80% कोर्स तैयार कर लेता था, फिर मुझे होता था कि यार अगर 20% में से ज्यादा आ गया फिर क्या बनेगा। तो वो भाई साहब 100% को 4 दफा रिवाइज कर लेते थे। ठीक है, तो नेगेटिव थिंकिंग या पेसिमिज्म या एक चीज का वो पहलू देखना कि जिसके अंदर खतरा हो, उसको देख के मजीद तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि वो अच्छा ही है, जैसे अभी हमने बात की। तो ये चीज डेफिनेटली इंसान को हेल्प करती है एक मजीद अच्छी तैयारी में। मगर एक इसका दूसरा एलिमेंट ये है कि इंसान सारा कुछ करने के बाद भी परेशान रह के अगर 100 के भाई अगर आ गया फिर भी मुझसे ना हुआ तो क्या करेंगे। मैं एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, उनका वहां पे मैं गया था बच्चों को करियर कोचिंग के ऊपर एक सेशन देने। तो वहां बच्चों से मेरी बात हुई, तो एक बच्ची थी, मैंने उससे पूछा कि कभी आपको एंजाइटी हुई। उसने कहा कि सर मुझे एग्जाम से पहले बहुत एंजाइटी होती है, और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन मेरा बहुत ही बुरा हाल होता है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा आप अब चूंकि आपके एग्जाम्स जो आपके हो चुके हैं, तो नाउ इफ यू लुक बैक ऑफ द सिचुएशन जब आप बहुत परेशान होती थी, अब आप क्या सोचती हैं उस सिचुएशन के बारे में जब आप बहुत परेशान थी, एग्जाम्स होने वाले थे, एग्जाम्स की एंजाइटी थी। उसने कहा कि सर अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं उस वक्त बहुत परेशान होती थी, मुझे ये लगता है कि मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। सही है। तो एंजाइटी को, पेसिमिज्म को उस वक्त तक या उतनी हद तक अच्छी है कि व्हेन इट लीड्स यू टू टेक एक्शंस, व्हेन इट लीड्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जब कि आपको वो कुछ करने के लिए पुश करे, कुछ करने के लिए मजबूर करे। और अगर इतना सब पे सवार कर ले कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता, और वो इतना डाउन कर दे, इतना नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी हो जाए कि इंसान बिल्कुल ही बैठे ही रह जाए, तो वो बहुत नेगेटिव है। उससे निकलना है हमेशा। इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, ये देखें इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हमने पहले बात की, हेल्प यू सी दी अदर साइड। तो यार ये कुछ और, जैसे आप लूडो खेलते हैं, लूडो में जब सारी गोटियां बाहर हों, बाकियों की भी गोटियां बाहर हों, आपको अगर 4 आ जाए तो इंसान ये सोचता है कि मैंने अगर ये चली, पिछले का 5 आ गए तो पिट जाऊंगा। तो आप कैलकुलेट करके अपनी जो बारी है ना, आप जो भी आपके डिजिट्स आए हैं, दाने आए, वो आप चलते हैं। तो आप सोचते हैं, देखते हैं कि भी क्या पॉसिबल एंगल्स हैं, मुझे कैसे चलना चाहिए। तो नेगेटिविटी का या पेसिमिज्म का या एक किसी भी काम के अंदर खतरे के पहलू को देखने का फायदा होना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए। और इसी तरह लीड यू टू कंसिडर अदर ऑप्शंस आल्सो। तो जब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई सिचुएशन आपके सामने है, तो उसमें अगर आप खतरे के पहलू देख रहे हैं, तो इट हेल्प्स यू टू मोर ऑप्शंस। तो आपके सामने और ज्यादा ऑप्शंस जो है वो खुल के आ जाती हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? नेगेटिव एनर्जी बॉडी में आती है, वो इंसान को बिठा के रखती है। फियर, अब जो खौफ है ना जी, खौफ, एक ईरानी शी इज अ राइटर, शी इज अ नॉवेलिस्ट एज वेल। तो आगे जो फियर टेक्स अवे द एबिलिटी टू सी थिंग्स रैशनली एंड लॉजिकली, ये उसने एक लाइन लिखी थी फियर के ऊपर, ये वहां से मैंने उठाई है कि जब इंसान के अंदर खौफ आ जाता है ना किसी चीज का, तो इंसान के अंदर उस चीज को रैशनली और लॉजिकली देखने की सलाहियत खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसान उससे डरना शुरू कर देता है। सही है। अब आप ये देखें कि जब भी आपके अंदर, अगर हम क्रिकेट, कौन कौन खेलता है, कभी किसी ने खेली है क्रिकेट? प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। तो देखिए अब क्रिकेट में क्या होता है, जब आपके सामने कोई बहुत ही
तेज बॉलर आ जाए और इंसान पहले से जहन में लगा ले कि यार ये तो गेंद ही ना कहीं लग जाए, तो क्या होगा? खौफ आ जाएगा। तो वो बॉडी, इंसान का ये पोस्चर है वो पहले ही डिफेंसिव हो जाएगा कि बस बॉल को देख के मैंने बस टुक कर देना है, बॉल को मैंने साइड पे जाने देना है। या इंसान के जहन में जब ये आता है कि यार ये बॉलर बड़ा हल्का है, इसको मैंने छक्का मारना है, तो आप ये देखें कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी कितना ज्यादा हो जाता है। वो पूरी बॉडी तैयार होती है कि बॉल आया और मैं छक्का मारूं। ऐसे ही है जी। और इसी तरह जब आपको पता हो कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक बॉलर है, बहुत तेज बॉलर है, तो बॉडी जो है ना वो उसके अंदर एग्रेशन नहीं होता, बॉडी जो है ना वो स्लो हो जाती है। बॉडी वेट करती है कि अच्छा बॉल आएगा तो मैंने किस तरह बचना है उसके साथ। तो ये एक उसका नेगेटिव एलिमेंट है। इसी तरह जब नेगेटिव थिंकिंग होती है, पेसिमिज्म होता है, तो इंसान सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर सोच रहा होता है कि बस यही होना है, अब तो जो मैंने सोच लिया है, जो बुरी आउटकम मेरे जहन में है, बस यही होना है। और आप लोगों ने एक उनका नाम सुना होगा, पॉजिटिविटी के ऊपर काफी उन्होंने काम किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जी इट ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम्स जो बुरी चीजें इंसान ने सोची होती हैं कि ये हो ना जाए, वो नहीं होती। 95% ऑफ द टाइम्स इन लाइफ, बी इट पर्सनल बी इट प्रोफेशनल, जब इंसान सोचता है ये हो ना जाए, नहीं होता 95% ऑफ द टाइम्स। तो इंसान अपने आप को कितना परेशान करके रखता है। इसी तरह सेल्फ ब्लेमिंग, ये भी एक नेगेटिव चीज है, नेगेटिव थिंकिंग की। देखिए अब ये चार्ट वो दोबारा आ गया। अब इसमें आप देखें, जब हम नेगेटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो जनरली नेगेटिव थिंकिंग पहले 2 पॉइंट्स पे घूमती रहती है, थॉट एंड फीलिंग। सोचा गलत ना हो जाए और फिर उसी के ऊपर सोचते रहते हैं, एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप हो जाती है। एक टर्म है जो डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन ने, जो ही इज अ फाउंडर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, उन्होंने बड़ी अच्छी एक टर्म यूज की है। वो ये कहते हैं, आप लोगों ने देखा है कभी जो गाय और भैंस जो जानवर है, ये क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने गाय या भैंस को जुगाली करते देखा है। किस किस ने देखा है जी? वेरी गुड। तो वो ये कहते हैं कि जी जो जुगाली है ना, ये बेसिकली इंसानों के अंदर भी ये हैबिट पाई जाती है। और जो लोग नेगेटिव थॉट्स या जिन लोगों में डिप्रेशन ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं? वो लोग नेगेटिव थॉट्स की जुगाली करते हैं, फारिग वक्त में बैठ जाते हैं और फिर जो नेगेटिव ख्यालात हैं उनको जहन में दोबारा लेके आते हैं और फिर उनकी जुगाली करते हैं। मतलब बैठ के सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो इस चीज से आप यू हैव टू बी केयरफुल। आपने ध्यान रखना है कि ये बार बार जुगाली तो नहीं करना शुरू कर दी आप नेगेटिव थॉट्स के ऊपर। बार बार किसी नेगेटिव थॉट को जहन में लेके बार बार उसके ऊपर सोचते नहीं रहे, तो वो थॉट्स की जुगाली तो नहीं शुरू होगी कहीं। कभी एक्सपीरियंस किया किसी ने ये थॉट्स की जुगाली किया आपने? अच्छा, देयर इज साइंस ऑफ जो नेगेटिव थिंकिंग है, इसमें आप ये देखें कि जो इंसान है, इंसान का दिमाग, अब हम थोड़ी जरा साइंस की तरफ आते हैं, वो जो काम करता है इसमें सेप्टो हिप्पोकैम्पल एक सिस्टम है जो बॉडी के जो आपका ब्रेन साइड है उसमें एमिगडाला एक पोर्शन है जहां के ऊपर ये चीज प्रोसेस होती है। सही है। और ये वो पोर्शन है कि जो जब जहाँ पे सिग्नल्स जाते हैं, ये फिर बॉडी के अंदर जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू सिग्नल्स जाते हैं और ये फिर उस सिचुएशन से निकलने में मदद देता है। फर्ज करें आप कहीं वॉक कर रहे हैं, एकदम आपको आवाज आती है पीछे से भौंकनी और बहुत तेज कुत्ता पीछे से भौंकता हुआ आ रहा है, तो इट इज दिस सिस्टम कि जो फौरन आपको बताएगा कि नाउ ईदर यू हैव टू रन और यू हैव टू पिक अ स्टोन, और या आपने किसी दरख्त पे चढ़ जाना। दिस इज दिस सिस्टम। तो एक इंसान का जो एक अल्लाह ने निजाम रखा है, उसके अंदर जो आपका न्यूरोकेमिकल्स हैं वो इंसान के उसके एक्शंस और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको सिग्नल्स पास करते हैं। इसी तरह जब आप पानी पीते हैं, आप तो बड़े मजे से पानी पी लेते हैं, प्यास लगी, गिलास सामने है, चलो जी पानी पी लिया। होता क्या है, अब आपको प्यास लगी, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा मुझे प्यास लग रही है। आंखों को जैसे ही पानी नजर आएगा
जो आपको ब्रेन के अंदर जो आपके न्यूरोकेमिकल्स हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पास ऑन करते हैं। इलेक्ट्रिकल सारी इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो एकदम से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू आप हाथों को मैसेज मिलता है, वो गिलास उठाते हैं पानी पी लेते हैं। सो इसके पीछे एक साइंस है, पूरा एक केमिकल सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज द साइंस ऑफ जो नेगेटिव या डेंजर, एक खतरे की सिचुएशन के अंदर इंसान का दिमाग किस तरह काम करता है, कौन से न्यूरॉन से वो काम करते हैं। इंसान के दिमाग के अंदर एक पोर्शन है जहाँ पे ये चीजें तय पाती हैं। अब ये है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। अब इसमें इसको आप ये देख लें, कुछ लोगों के अंदर ये होता है, तो दिस इज अ गुड थिंग कि अगर कभी आप कभी किसी को भी लगे कि मैं ज्यादा नेगेटिव सोचना शुरू हो गया हूँ या मैं बहुत ज्यादा डाउन होना शुरू हो गया हूँ, तो आप ये अपने जहन के अंदर एक चीज लेके आ सकते हैं, एंट, ANT, एंट, चूंटियां। आप ये अपने आप कह सकते हैं कि यार वराइक साहब या हाफिज साहब या अली यकूब साहब, अपने आप से आप बात कर सकते हैं कि यार ये देखो अब मैंने चूंटियां अपने ऊपर चढ़ाना शुरू कर दी हैं या मैंने अब जुगाली करना शुरू कर दी है। सो यू हैव टू नो, you have to understand, you have to know yourself, you have to know your mood के भाईजान, भाई साहब, अंबर साहब, अपना काशिफ साहब, गेल साहब, अब ज्यादा हो गया है, जुगाली ज्यादा हो गई है, चींटियां ज्यादा चढ़ना शुरू हो गई हैं, बहुत हो गई है, इतना ज्यादा नहीं सोचना। हाँ, एक सिचुएशन है, अगर उसमें कोई एलिमेंट ऑफ खतरा है वो मैंने सोच लिया, अब मैंने ये देखना है मैंने निकलना कैसे है। मैंने इस चीज के ऊपर गौर इतना ज्यादा नहीं करना कि बस अब ये तो ऐसा ही होगा। आप लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? कौन एग्री करता है मेरे साथ? आप लोग एग्री करते हैं मेरे साथ, सही है। और देखें, खैर एक पर्सनालिटी टाइप के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है, तो मैं लिख रहा हूं। अगर टाइम खत्म हुआ तो अली, जब टाइम खत्म होने लगे तो 2-3 मिनट पहले मुझे आप बता दीजिएगा, ताकि मैं वो पर्सनालिटी टाइप वाला जो है ना उसको मैं जरूर डिस्कस कर लूं। जी जी बिल्कुल, मैं आपको टाइम रिमाइंडर्स देता रहूंगा, आप अपना व्हाट्सएप सामने रख लीजिए, तो मैं आपकी ये ऑनगोइंग टॉक को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। ओके, अभी किया तो नहीं कोई आपने? नहीं, अभी कोई मैसेज नहीं किया मैंने। आई हैवंट सेंड यू अ सिंगल मैसेज, बट आई कीप सेंडिंग यू। कितना अच्छा, टाइम ये देखें, अब जैसे मैंने आपसे बात की है, यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप योर नेगेटिव थॉट्स। अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, आप कह रहे हैं कि यार ये क्या बात है, मैंने अपने आप को क्यों परेशान किया? क्या ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स या खौफ, पेसिमिज्म को मैंने जितना जहन पर डाल दिया, इसका मैं फायदा क्या ले रहा हूँ? सिवाय इसके कि मैंने अपने आप को डराया हुआ है, मैंने अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग्स जो है ना वो डेवलप की गई है। तो आप, यू शुड नो वेयर टू स्टॉप। यू शुड टेल योरसेल्फ कि यार क्यों मैंने अपने आप को फंसा लिया, मैं इतनी नेगेटिव चीजें क्यों सोच रहा हूँ? तो आपने अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना है, अपने आप को उस सिचुएशन में फंसा के नहीं रखना। ये मैं आपको दोबारा ये चीज कहूंगा कि जब कभी आपको लगे कि आप एक चीज आपने सोचना शुरू कर दी, आपने चूंटियां अपने ऊपर चढ़ा ली, आपने जुगाली करना शुरू कर दिए, तो यू शुड नो वेयर टू स्टॉप। देखिए, हर इंसान जो नेगेटिव थॉट्स का स्पाइरल है उसमें घुसता जरूर है, क्योंकि इट्स नेचुरल। ये इंसान की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि वो खतरे को भांपे और उससे निकलने का रास्ता निकाले। और अगर खतरे को भांप के सिर्फ ये हो गया कि यार ये तो मैं मर जाऊंगा, तो फिर तो आप मर जाएंगे। तो यू शुड नो वेयर टू स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। पेसिमिज्म या खतरे को भांपना या खतरे के ऊपर सोच के अपने आप को निकलने का रास्ता इज वेरी गुड, मगर वो, एक मिनट ठहरिएगा। तो खतरे को भांपना और उससे निकलना बहुत बहुत जरूरी है, मगर अपने आप को अपने नेगेटिव थॉट्स में फंसाना नहीं। क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। और यही आप कैसे करेंगे? किसी के जहन में कोई एक पॉइंट आता है कि कैसे अपने आप को निकालेंगे?
प्लीज रेज योर हैंड, उनको हम अनम्यूट कर लेंगे। किसी के जहन में कोई पॉइंट आता है कि नेगेटिव थॉट्स के स्पाइरल से कैसे निकाला जा सकता है अपने आप को? फारूक साहब? देखिए, अगर आप नेगेटिविटी को आप एक साइड पे करके आप अपनी चीजों को करते हुए, तो आप उस थॉट प्रोसेस को छोड़ देंगे जो आपको आगे को, हाँ, जब कभी कंपेयरिंग हो थोड़ी बहुत कि इस नेगेटिविटी से मैं अपनी इन चीजों को, आने वाली जो नेगेटिव है उनसे मैं बचा जा सकता हूँ, या मुझे अपनी प्रिकॉशंस करनी है, तो फिर हम उन फैक्टर्स को सोच सकते हैं। लेकिन अपनी पॉजिटिव सोच से हम रहेंगे, अपनी पॉजिटिव सोच के ऊपर, ताकि हम उस थॉट प्रोसेस से निकल सकें बेहतरी की तरफ। बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है, वन शुड नो कि भाई मैं अब सिचुएशन मेरी ऐसी आ गई है, मैंने अपने को बहुत फंसा लिया सिचुएशन के अंदर, नाउ यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। अच्छा, दूसरा ये कि यू कैन राइट अबाउट द सिचुएशन, कि सिचुएशन है क्या, ये सिचुएशन है क्या और मैं इससे निकल कैसे सकता हूँ, बजाय से कि आप एक ही डगर पे सोचते रहे कि सिचुएशन बुरी है, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। So, दूसरा क्या है, you can talk to your friend, you can go out, you can walk, you can go out to have, कहीं जाके चाय पी लें, बच्चों के साथ बैठ जाएं, कोई जाके आप कोक शोक पी लें। So, जो चीज आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती है। एक स्टडी है, वो ये कहती है कि कोई भी फीलिंग इंसान के जहन के ऊपर 15 से 20 मिनट से ज्यादा सवार नहीं रह सकती। ठीक है, तो आप उसको डाइवर्ट करें तो डेफिनेटली फायदा होगा। अब होता क्या है कि शुरू में इतनी सी होती है, फिर सोचते हैं वो जो जुगाली वाला पैटर्न है, वो करते 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 इंसान बिल्कुल एंड में जाके एग्जॉस्ट हो जाता है, और उसके अंदर फिर मजीद कुछ करने की सलाहियत, मेंटली इतना थक जाता है कि वो बिल्कुल एग्जॉस्ट होकर रहता है। तो ये अपने साथ आप ना होने दें। अच्छा, देयर आर पर्सनैलिटी टाइप्स, जो मैं अभी अली से मैंने बात की थी। पर्सनैलिटी टाइप क्या होती है? कई पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं कि लोग कुछ बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि यार मैंने इम्तिहान दिया है, ये आई थिंक कोई अनम्यूट हुआ है। आने हैं तो 5 में से मैंने ये 3 कर लिए हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी, और आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। अच्छा, मैं तो म्यूट नहीं हो गया? नहीं, आप म्यूट नहीं हो गए, आपकी आवाज आ रही है। तो कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो ये समझते हैं कि जी हमने जो थोड़ा बहुत कर लिया वही काफी है। और ये स्टूडेंट लाइफ में काफी इस तरह की एग्जांपल आपको देखने को मिलती है। वो ये समझते हैं यार कोई से 3 सवाल, अहम सवाल बता दो, मैं वो रट्टा लगा लेता हूँ और मैं फिर पास हो जाऊंगा। और कुछ लोग होते हैं वो सारा कोर्स भी याद कर ले, फिर भी इनको टेंशन ये पड़ी होती है कि यार ये कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज आ जाए जो मैं कर ना सकूं। सो देयर आर डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स। देखिए, पर्सनैलिटी है क्या? द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विद अदर्स। अब ये बनते कैसे हैं, इसके डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल होता है, एक माँ बाप से या खानदान से हेरिडिटी के थ्रू आता है, फिर सोशल फैमिली इंटरेक्शन, बंदे जिस तरह की ग्रूमिंग हुई होती है उसके थ्रू आता है। तो अपनी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पर्सनैलिटी किस टाइप की है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दें। अब आई नो समवन, उनको अगर कट लग जाए और हल्का सा खून निकलना शुरू हो जाए तो उनका कहना ये होगा कि खून जो है वो बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, राइट? और कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर काफी बड़ा भी कट लग जाए तो वो कहेंगे यार छोटी सी चोट लगी है। तो सिचुएशन के एनालिसिस के ऊपर इंसान की जो पर्सनैलिटी टाइप है वो बहुत, उसका काफी बड़ा रोल होता है। इसीलिए जब आप किसी दोस्त से बात करते हैं अपनी परेशानी के लिए, या किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, तो दोस्त को आप बताते हैं तो दोस्त आपसे कहेगा यार ये तो इतनी कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है जो तुम अपना मतलब जहन के ऊपर इतना इसको सवार कर रहे हो।
दूसरी चीज कई दफा ये होती है कि लोग कहते हैं कि यार भाईजान कुछ कर लें, ये इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। आप लोग एग्री करते हैं मेरे से? क्या इस किस्म की पर्सनैलिटीज पाई जाती हैं जहां पे लोग ओवर रिएक्ट कर जाते हैं या जहां पे लोग अंडर रिएक्ट करते हैं? आप लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? वकास साहब, क्या आपने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं? वकास साहब, वकास अहमद साहब, वकास साहब को अनम्यूट करेंगे? वकास साहब की आवाज नहीं आ पाई। जी, वी आर ट्राइंग टू अनम्यूट वकास, लेकिन वो प्रोबेबली इंटरनेट की स्लो है या क्या है, वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रही। मीनवाइल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप किसी और की तरफ सवाल पूछें, हम वकास को भी ऑनलाइन लेने की कोशिश करते हैं। सही है। एहसन रज़ा साहब जी, तो एहसन रज़ा साहब, आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं कि जो देखे हैं आपने? जी बिल्कुल जी, हमारी तो जो इस वक्त जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें तो बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो परेशानी की हालत में दोनों तरफ पे चले जाते हैं, ओवर रिएक्ट भी करते हैं और अंडर रिएक्ट भी करते हैं। क्योंकि हमारा डेली का काम इस तरह का है कि कस्टमर के साथ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डीलिंग करना, उसमें हमें दोनों तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ती है। मुझे याद है, मैं अब एक हमारा एडीबी की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हमारा एक कोचिंग सेशन था फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो मेरा जो पार्ट था, मैंने उसके लिए तैयारी की और जाके लैपटॉप पे अपनी जो प्रेजेंटेशन थी वो उसमें लगा दी। तो जिन्होंने, एक और साहब थे, वो उनके साथ एक और लड़का आया हुआ था जो उनको असिस्ट कर रहा था। तो अभी ट्रेनिंग सेशन शुरू होने में 15-20 मिनट थे। मैं गया, मैंने साउंड सिस्टम चेक किया, प्रेजेंटेशन जो है वो OHP पे लगा के देखी और मैं कहा चलो ठीक है मैं आऊँगा। डेस्कटॉप पे मैंने उसको सेव कर दिया। वो जो दूसरा लड़का था वो कह लगा मैं ये करके मैं बाहर जा रहा था। यानी कहाँ जा रहे हो? मैं कहा बस बाहर जा रहा हूँ। बाहर क्यों जा रहे हो? अभी आधा घंटा रहता था, लोग भी अभी नहीं आए थे। तो मैंने कहा देखो मैंने सारी सेटिंग वगैरह कर ली है, तो बस अब ठीक है, पहला सेशन उनका है वो कर लेंगे, उसके बाद मैं आऊँगा अपना प्रेजेंटेशन खोलूंगा। और नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है। मैं क्या मतलब ऐसे थोड़ी होता है? तो उसके हाथ पैर फूलना शुरू हो गए जस्ट बिकॉज के आधे घंटे बाद 30-40 लोगों ने आना था और वो थे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसने वहां पे आना था, सेक्रेटरी लेवल के 1-2 लोगों ने आना था। मैं कह परेशानी किस बात की है? कहते नहीं यार इधर ही बैठे रहो। मैं कहा भाई मैं यहाँ नहीं बैठ रहा, मैं तैयारी पूरी कर चुका। तो ही वाज ओवर रिएक्टिंग। जो बेसिक एक चीज थी वो हो गई थी, उसके बावजूद वो ओवर रिएक्ट कर रहा था। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक तो आएंगे 10 मिनट लेट और यूएसबी उनके हाथ में होगी, पता लगेगा जी यूएसबी जो है यहाँ खुल नहीं रही। वो हाईली पॉजिटिव के बस हो जाएगा, बाकी सब भी लेट आएंगे, मैं भी लेट आ गया हूँ। अब इसमें तरीका ये होता है आप वक्त से पहले आए, अपना लैपटॉप से एक साथ लेके आए, अपनी जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है अपने आप को ईमेल भी कर दे, सो दैट 3-4 तरीकों से आप उस चीज को एक्सेस कर सकें। तो आप खुद इंसान अपनी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर पाता। सो इट्स ऑलवेज गुड कि जब कभी इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में हो, कोई नेगेटिव सिचुएशन में हो, या आप समझ रहे कि इंसान फंस गया है पेसिमिज्म के अंदर, तो यू सीक हेल्प। किसी दोस्त से बात करें, किसी ऐसे दोस्त से बात करें कि जो एक जिसकी रैशनल थिंकिंग हो, जिसकी लॉजिकल थिंकिंग हो, ना कि ऐसे के पास जाए कि जो आपको वही चीज 2 से मल्टीप्लाई करके मजीद परेशानी में इजाफा करे। गॉट इट? सो देयर आर पर्सनैलिटी टाइप्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड हर इंसान की एक पर्सनैलिटी है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि यार मैं फंस गया हूं, मैं ऐसे नहीं निकल पा रहा, सो यू शुड सीक हेल्प। आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। साइंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी।
पॉजिटिव साइकोलॉजी की भी एक साइंस है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेगेटिव साइकोलॉजी की एक साइंस है, इसी तरह वो साइंस क्या है? देखिए, देयर आर सर्टेन न्यूरोकेमिकल्स जो इंसान के दिमाग में रिलीज होते हैं और जिससे इंसान को कुछ फायदा होता है। अभी हम बात करते हैं कि जी सेरोटोनिन, इसका किसने नाम सुना हुआ है? पहला केमिकल सेरोटोनिन। यस, वेरी गुड। और किसी ने नाम सुना है इस केमिकल का? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, किसी ने नाम सुना है इस केमिकल का? देखिए, ये केमिकल है, इसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन, सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ अचीवमेंट। अभी अगर अली याकूब साहब जाहिद अशरफ साहब को एक लिफाफा दें जिसमें हो कि जी आपको 4 सैलरी का बोनस मिल गया है, तो उस वक्त जो खुशी आपको होगी वो बेसिकली बाय हियरिंग दैट गुड न्यूज। जाहिद अशरफ साहब, आपको अगर अभी अली याकूब साहब एक लेटर देंगे, लिफाफा देंगे जिसके अंदर एक की अगर हम थोड़ी साइंटिफिक उसमें जाएं तो एक सेरोटोनिन एक केमिकल है जो ब्रेन में रिलीज होता है जब दिमाग को एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, जब खुशी आती है, जब इंफॉर्मेशन, तो दैट इज इसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन कहते हैं। और ये इंसान के जहन में आता है सेंस ऑफ पर्पस या सेंस ऑफ अचीवमेंट से। इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने लिए कुछ छोटे टास्क रख सकते हैं, मैंने आज ये करना है, मैंने ये करना है, छोटे छोटे टास्क जो आप अचीव करके अपने आप को खुश कर सकते हैं। एक और है जी डोपामाइन, इट्स अ रिवॉर्ड ड्रिवन फील गुड थैंकफुलनेस। एक लिस्ट बनाए चीजों की जिसके ऊपर आप समझते हैं यू शुड बी थैंकफुल इन योर लाइफ। जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जो आपका ये न्यूरोकेमिकल है डोपामाइन, ये रिलीज होता है। इट विल गिव यू अ गुड फीलिंग। ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग। यहाँ पे कोई गैर शादीशुदा बैठा हुआ है जी? हाँ, तुम तो लग रहे थे मुझे राइट। अभी ये बताओ कि जब घर में रिश्ते की बात चलती है तो कैसी फीलिंग होती है? घर में जब रिश्ते की बात चल रही तो कैसी फीलिंग होती है? सब एंगेज हूं मैं। एंगेज हो? चलो, अब हो गया। होने वाली बेगम से बातचीत होती है? कभी कभी। अच्छा, तो जब बात होने वाली होती है या फोन आने वाला होता है या फोन करना होता है, कैसी फीलिंग होती है बात से पहले? सर खुशी होती है। खुशी होती है। तो उस वक्त जो खुशी होती है, मैं आपकी खुशी को मतलब खराब नहीं करना चाह रहा, वो बेसिकली ऑक्सीटोसिन एक केमिकल है जो आपके ब्रेन में रिलीज होता है और इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ये जो लव रिलेशनशिप्स हैं, जो हम फिजिकल रिलेशनशिप्स है विद आवर स्पाउसेस, उस वक्त ये रिलीज होता है। या जो पेट्स के साथ या दोस्तों के साथ आप मिलके बैठते हैं और आपको खुशी होती है, इस दैट केमिकल की जो इंसान के जिस्म में वो खुशी लेके आता है। एंडोर्फिन, ये वो केमिकल है जब इंसान गेम करता है, खेलता है। आपको याद होगा जब कभी आप खेल के आते हैं, बैडमिंटन खेल के आते हैं, क्रिकेट खेल के आते हैं, तो खेलने से पहले और खेलने के बाद इंसान कितना वाज़ेह फर्क महसूस करता है अपने अंदर। करते हैं आप लोग? यस, इट इज बिकॉज ऑफ एंडोर्फिन, ये रिलीज होता है उस वक्त। फिर हम बात करते हैं जी गाबा केमिकल एक है, एंटी एंजाइटी। ये कब रिलीज होता है? जब इंसान मेडिटेशन करता है, दुआ मांगता है। सो ये लिस्ट दिखाने का मतलब कतन ये नहीं था कि मैं आपको केमिकल्स के नाम याद कराऊं। इसका मकसद, चले जी आप मुझे बताएं इसका क्या मकसद हो सकता है? कौन बताएगा? लिस्ट शेयर करने का क्या मकसद है?
बाबर बुखारी साहब। हो हर चीज से अवेयरनेस। जी बाबर साहब, अवेयरनेस। जी अवेयरनेस। वेरी गुड। देखें और कोई, गैलेक्सी J7 2016 ये कौन है जी? ग्रीन मास्क। ग्रीन मास्क किसने पहना हुआ जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बताएं। समझाने के लिए, अवेयरनेस समझाने के लिए। जी समझाने के लिए और इस पे अमल करने के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने लिए जब भी कोई टास्क रखेंगे उसको आप अचीव करेंगे, यू विल फील गुड। सो ट्राई टू हैव टास्क्स। मतलब जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़े टास्क रखें अपने लिए। आप ये समझ सकते हैं मैंने दिन में 4 काम करने, आपने 4 काम कर लिए, बी हैप्पी, खुश हो। इसी तरह थैंकफुलनेस, जो चीजें अच्छी हैं उनको लिखें, उनको पढ़ के खुश हो। दोस्तों के पास जाएं, घर में ताल्लुकात अच्छे रखें। जब कभी डाउन हो तो यू शुड नो कि दोस्तों के पास जाने से इंसान एक अच्छा फील करता है। स्पोर्ट्स करने से, वॉक करने से, खेलने से, ये सारी पॉजिटिव एक्टिविटी की चीजें हैं कि जो आपकी सेहत के ऊपर, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आया आपको समझ? गुड, चलें जबरदस्त। अब ये देखते हैं कि क्या हैप्पीनेस, खुशी इंसान इंक्रीज कर सकता है। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन ने एक स्टडी की थी ओल्ड होम, जहाँ पे जो बड़ी उम्र के लोगों को रखा जाता है, तो वो चूंकि अपने घर से दूर सारा कुछ, तो उन्होंने उनका हैप्पीनेस स्केल के ऊपर जब टेस्ट लिया तो इट वाज, जो 10 का स्केल था उस पर 3 पे लोग फॉल कर रहे थे। तो उन्होंने उनको 3 हफ्ते के लिए एक एक्सरसाइज दी और वो एक्सरसाइज ये थी कि आप लोग रोजाना एक ऐसी चीज लिखेंगे जिसके ऊपर आप शुक्रगुजार हैं, जो आपकी जिंदगी में हुई है। तो उन्होंने ये एक्सरसाइज फॉर 3 वीक्स की थी और उनका जो हैप्पीनेस का स्कोर है ऑन अ स्केल ऑफ 10, वो 3 से 7 के ऊपर आ गया। सो थैंकफुलनेस का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट इंसान के जहन के ऊपर होता है और इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक और आउटकम होता है पॉजिटिव थिंकिंग का, और वो होता है इंसान की लक के ऊपर। एक साइकोलॉजिस्ट है रिचर्ड वाइजमैन। May I have a question? जी 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 प्लीज। और ये आपने पिछली स्लाइड में, कैन वी गो बैक टू द लास्ट स्लाइड, और आपने कहा ग्रैटिट्यूड का, तो आप हमें क्या हेल्प कर सकते हैं? कुड यू प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कीपिंग करंट पैंडेमिक सिचुएशन इन व्यू, when we see the uncertainty, stress, distress is prevailing across the globe, तो वहां पे ऐसी किन चीजों के बारे में है जिनके बारे में हम थैंकफुल हो सकते हैं? क्या हमारे पास कोई रीजंस हैं थैंकफुल होने की? Could you please help us understand or help? देखिए, कपल ऑफ थिंग्स। नंबर 1 जिस पे हमें आई थिंक बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, वो तो ये कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन इज नॉट एज बैड एज इट इज इन यूरोप और अमेरिका, जहां तक इस वायरस की बात है। तो यहाँ के ऊपर इसका स्प्रेड अल्लाह का शुक्र है बहुत कम है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ के ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता जो, अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस इज कमिंग टू बैक टू नॉर्मल। आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे लॉकडाउन हैं वो कम हो रहे हैं। तो ये 2 रीजन है। अगर हम इसकी पेंडेमिक की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, तो यहाँ के ऊपर इसका फैलाव काफी कम है। अच्छा, हमारा चूंकि बिजनेस ऐसा है कि हम लोग चाइना के साथ भी काफी काम करते हैं, तो चाइना वाज टोटली शट डाउन फॉर एटलीस्ट 40 डेज। देयर कुछ सेक्टर्स के अंदर है जरूर, क्योंकि डिपेंडेंस टू बाहर की मार्केट जिस इंडस्ट्री में ज्यादा है वहां पे डेफिनेटली होगा, मगर चाइना वाज टोटली लॉकडाउन। मतलब बहुत बुरी सिचुएशन थी। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है नंबर ऑफ डेथ्स बहुत कम है, स्प्रेड बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर दिस इज अ गुड साइन। ओके, थैंक यू। ये पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट है ये, अच्छा ये जो जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, रिचर्ड वाइजमैन,
ये पीएचडी साइकोलॉजी में पीएचडी करने से पहले ही वाज अ मैजिशियन। वो छोटी छोटी ट्रिक्स करके अपना रोजगार कमाते थे। ही वाज अ मैजिशियन। तो एक दफा वो बताते हैं कि एक अपना शो कर रहे थे, तो उसमें ऑडियंस में से किसी से उन्होंने एक 100 पाउंड का नोट लिया और उनके सामने 4-5 खाली लिफाफे थे। तो रिचर्ड वाइजमैन ने किसी एक लिफाफे के अंदर वो नोट डाल दिया और लिफाफे शफल कर दिए, और 4 में से 3 लिफाफे फाड़ दिए। जब एक लिफाफा जो रह गया था उसको खोला तो उसके अंदर नोट साबुत था। तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आंट यू हैप्पी, तुम्हारा नोट बच गया? तो उसने कहा कि नहीं, आई एम ऑलवेज अ लकी वुमन, आई एम ऑलवेज अ लकी पर्सन। तो दिस इंट्रीग उनके अंदर के मैं ये लक फैक्टर के ऊपर कोई स्टडी करूं, और फिर उन्होंने वहां पे स्टडी की, एडमिशन लिया और पीएचडी की साइकोलॉजी के अंदर। तो लक फैक्टर को स्टडी करने के ऊपर उन्होंने एक न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दिया और कहा कि जी जो लोग अपने आप को लकी समझते हैं प्लीज मुझसे रब्ता करें, मैं एक स्टडी कर रहा हूँ, और जो लोग अपने आप को अनलकी समझते हैं प्लीज वो भी मुझसे रब्ता करें, मैं एक स्टडी कर रहा हूँ लक फैक्टर के ऊपर, कि वो क्या चीज है कि जो लक फैक्टर को स्टैब्लिश कर दी है। तो उनकी जो किताब है द बुक इज कॉल्ड द लक फैक्टर, ये मैंने पढ़ी भी है। अब इसके अंदर वेरी ब्रीफली मैं आपको बता दूं, उन्होंने 4 चीजों को हाईलाइट किया। नंबर 1, मैक्सिमाइज योर चांस अपॉर्चुनिटीज। जिन लोगों ने अपने आप को लकी डिक्लेयर किया था, फिर उन्होंने उनको अपने पास बुलाया, उनके डिटेल इंटरव्यूज हुए। उन डिटेल इंटरव्यूज के बाद उन्होंने जो मेन चीजें निकाली हैं वो ये है कि जो लकी लोग होते हैं दे मैक्सिमाइज देयर चांस अपॉर्चुनिटीज। चांस अपॉर्चुनिटी को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है कि जब आप कोई एक्शन लेंगे, जब आप कोई रिस्क लेंगे, जब आप कुछ सोचेंगे कुछ करने के बारे में। डू यू एग्री विद इट? हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर चांस अपॉर्चुनिटीज? जब कोई प्राइज बॉन्ड लेगा ही नहीं तो उसका प्राइज बॉन्ड कैसे निकलेगा? वो ये कहते हैं कि एक शख्स वहां पे मशहूर था कि उसके जो लॉटरीज में और ये लकी ड्रॉ में बहुत इनाम निकलते थे, और उसने अपने आप को लकी डिक्लेयर किया था। वो आया, उन्होंने उसका इंटरव्यू किया, तो उसमें ये बात पता लगी कि ही इज द वन कि जो शायद सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है लकी ड्रॉज के अंदर, और उसका सक्सेस रेशियो कोई बहुत ज्यादा नहीं था, मगर चूंकि वो पार्टिसिपेट करता था तो उसके कभी ना कभी इनाम भी निकल आते थे। सो यू हैव टू मैक्सिमाइज योर चांस अपॉर्चुनिटीज बाय टेकिंग इनिशिएटिव्स। दूसरा, लिसन टू योर लकी हंच। कई दफा होता है कि इंसान के अंदर, जहन के अंदर आइडिया आता है, मगर अपनी सुस्ती और काहली की वजह से उस पर अमल नहीं करता और वो नहीं उस पर गेन कर पाता। फिर ये एक्सपेक्ट गुड फॉर्च्यून, ये सोच के चीज के ऊपर अमल दरामद ना रोकें कि यार इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा। यू नेवर नो, आपको पता है अमानुल्लाह, अल्लाह को दर्जात बुलंद करे, अमानुल्लाह को जब पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी तो उनका क्या रिएक्शन था स्टेज पे जाने से पहले? किसी ने सुना ये चीज, इसके बारे में किसी ने सुना? ये बुखारी साहब सुना है आपने? बाबर बुखारी साहब नहीं सुना? अमानुल्लाह की जो पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी उसकी टांगे कांप रही थी, और अमानुल्लाह ने कहा था कि जी मुझे जाने दे, मुझसे ये नहीं होने लगा। डू यू नो? तो अपने आप को यू हैव टू एक्सपेक्ट गुड फॉर्च्यून, एक्सपेक्ट करें गुड फॉर्च्यून और अपने आप को उस चीज के अंदर डालें, तभी अच्छा रिजल्ट निकलेगा। टर्न बैड लक इनटू गुड। कई लोग हैं उनके साथ बिजनेस में बैड सिनेरियोज होते हैं, मगर जॉब में बैड सिनेरियोज होते हैं, अपने आप को मुश्किल वक्त से निकाल लेते हैं। मैं मूव ऑन करूंगा। कुछ टेनिस प्लेयर ने कहा कि गेम का फैसला गेम में जाने से पहले ही हो जाता है। The fifth set is not about tennis, it's about nerves. टेनिस के अंदर जब 5वां सेट होता है, जिसका 2-1 नहीं जीते, 2-1 नहीं जीते, इसका मतलब है कि दोनों बराबर है। अब 5वां सेट जो है वो नर्व्स का है। अब हो सकता है अभी जो हमारी बिजनेस सिचुएशन है या करंट पेंडेमिक सिचुएशन है, ये 5वां सेट हो। इट्स ऑल अबाउट नर्व्स।
हार्वर्ड की एक स्टडी हुई है, उसमें एक जो पार्टिसिपेंट है उसने कहा था कि जिंदगी जो है ना, इट्स ऑल अबाउट स्क्वीजिंग द लेमन, कि आप कितना अपना पोटेंशियल निचोड़ते हैं, अपने आप को कितना आप ग्रिल करते हैं, अपने आप में से कितना जूस निकालते हैं, और उसी से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आई थिंक टाइम हमारे पास कम रह गया, मैंने कुछ चीजें 7 मिनट शायद रह गए। मैं चाह रहा था कि आपके साथ कुछ चीजें, मैंने जो प्रेयर्स हैं, दुआएं हैं, उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। देखें, कुरान में ये सूरह शूरा के अंदर आखिरी सूरत है, ये सॉरी आखिरी आयत है सूरह शूरा की, कि कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआएं ना होती तो तुम्हारे रब को तुम्हारी परवाह ना होती। तो पावर ऑफ प्रेयर जो है ना, इस पे आप यकीन रखें, अपने लिए दुआ मांगे, दुआएं जरूर कबूल होती हैं, मगर यकीन के साथ। यकीन रखें, रिवॉर्ड, अच्छे काम का रिवॉर्ड मिलेगा, इस पे आप यकीन रखें। सूरह मोमिन के अंदर अल्लाह ने कहा है कि आज हर शख्स को इसके अमल का बदला दिया जाएगा, आज जुल्म नहीं होगा, अल्लाह यकीनन हिसाब लेने वाला है। तो हम लोग, अमल का बदला हर शख्स को मिलेगा, मेहनत करें, कोशिश करें, अमल का बदला मिलेगा। और देखें, सिर्फ दुनिया तक ही जिंदगी नहीं है, आगे भी जाना है। कोई ऐसे काम आप करते हैं, वालिद की खिदमत करते हैं, वालदा की खिदमत करते हैं, बहन भाइयों के साथ नेक सलूक करते हैं, लोगों को आप माफ कर देते हैं, तो उसका रिवॉर्ड भी अपने जहन में रखें कि जब इंसान इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएगा तो वहां भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वहां की अच्छी जिंदगी को भी आप जहन में लेके जरूर आए। फेथ, भरोसा, भरोसे के ऊपर सूरह जुमर में है, और इन लोगों ने ये देखे, इन लोगों ने अल्लाह की कदर शनासी नहीं की जैसा इसकी कदर करने का हक है। अब ये देखें, अल्लाह का गिला है लोगों के साथ कि इतनी बड़ी जात है, लोग उसकी कदर करने का क्या मतलब है? फेथ नहीं है, इतना ज्यादा, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं है कि वो हमारा पालने वाला है, वो हमें मुश्किल में हमारा साथ देगा। भरोसे की बात है, भरोसा करने वाले को अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। जब इंसान ने भरोसा करना है तो सबसे बड़ा भरोसा तो फिर अल्लाह का, इंसान का अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। सब्र है जी, सब्र के ऊपर सूरह लुक़मान की है कि जो मुसीबत तुझे पेश आए इस पर सब्र करो, ये माम। अब अल्लाह कहता है मुसीबत, अच्छा सब्र के ऊपर मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जो सब्र है ना, सब्र का मतलब ये नहीं है कि जब मुसीबत आ गई, मुश्किल आ गई, बस आप चुप करके बैठे रहें। सब्र का मतलब ये है कि जो मुश्किल है, मुसीबत है, उस पर आप शोर न मचाएं, हाय लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। सब्र का मतलब ये है कि उसका मुकाबला करें, उससे निकलने के लिए कोशिश करें और अल्लाह से दुआ मांगे। ये है सब्र का मतलब। हदीस कुदसी है कि जिसने मेरे लिए तकलीफ उठाई, इसकी दुनिया और आखिरत का मैं जामिन हूँ। अब तकलीफ उठाने से क्या मतलब है कि तकलीफ उठाने से मतलब धूप में खड़ा होना नहीं है, या कोई 10 किलो वजन को 100 सीढ़ियां ऊपर लेके जाने का मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंसान अपने नफ्स के मुखालिफ जो काम करता है, अगर उसको बीवी की बात बुरी लगी है, बीवी पे शाउट नहीं कर रहा, बच्चों को दरगुजर से काम ले रहा है, वालिदैन के साथ नरमी से बात कर रहा है, या कोई किसी की बुराई करने को दिल चाह रहा है, कोई बुरा काम करने को दिल चाह रहा है, अपने आप को रोक लिया। जब इंसान अल्लाह के लिए तकलीफ उठाता है तो अल्लाह फिर उसकी जो तकलीफें भी अल्लाह उसकी दूर करता है, उसकी दुआएं भी उसकी कबूल होती हैं। लास्ट स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो ये है कि जी फेथ, लेट देयर बी नो मोमेंट ऑफ नो फेथ। कहीं ऐसा ना हो कि परेशानी के अंदर इंसान खुदा को भूल जाए और खुदा की जात, इतनी बड़ी जात, अपने बंदे को देख के ये देखे कि देखो ये इतना परेशान हो गया, इतना मायूस हो गया, और इसकी मायूसी जो है वो इतनी बड़ी हो गई है कि इसकी मायूसी तो मेरी कुदरत, जो मैं जितना कादिर हूँ, उसने समझ लिया कि मेरा जो चैलेंज सिचुएशन है, या जो इस वक्त जिस परेशानी का मुझे सामना है, वो तो इतनी बड़ी है कि अल्लाह भी मेरी मदद नहीं कर सकता। ये वो सिचुएशन होती है जब इंसान के अंदर से ईमान निकल चुका हो। सो लेट देयर बी नो मोमेंट ऑफ नो फेथ। कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, कितनी भी बड़ी परेशानी आए, यू हैव टू हैव फेथ इन गॉड, यू हैव टू हैव फेथ इन योर एबिलिटीज। आप सिचुएशन से निकलने के लिए सोचे, अल्लाह इंशाल्लाह रास्ता निकालेगा। अली, आई एम डन। On, can you hear me? जी जी। Jazakallah khair on. Thank you very much for such wonderful presentation. एक बार फिर से पहले तो मैं आपका I would like to extend our heartfelt thanks for accepting our invite
to be our guest resource, and secondly for delivering such a wonderful interactive session. इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपको कोशिश करेंगे एंगेज करें, और एक हमारा जो एक कोलैबोरेटिव एक एफर्ट से आज हमने ये डिलीवर किया है MTM के एम्प्लॉइज के लिए, विल ट्राई आवर दी बेस्ट कि कोई फ्यूचर में भी कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज निकलती रहे। और बाकी सबसे आई होपफुली कि सबको मेरी आवाज आ रही होगी, हमने सबको म्यूट किया हुआ है, तो हम एक बार मिलके थम्स अप करके एक बार हम शुक्रिया अदा कर दें ऑन का। थम्स अप, सबको आवाज आ रही है? थम्स अप करें और ऑन का शुक्रिया अदा करें। ऑन बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह है, अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत जज़ा दे। आई विल बी इन टच विद यू। हमने पूरा सेशन जो है इसको रिकॉर्ड किया है। जिन लोगों ने वीडियो ऑफ किया हुआ है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि अपना वीडियो को ऑन कर लें ताकि हमारे इस सेशन की एक ग्रुप फोटो हो जाए। देखिए ट्रेनिंग में जब हम इन पर्सन ट्रेनिंग करते हैं क्लासरूम में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईच सेशन वी टेक अ फोटोग्राफ। अब क्योंकि ऑनलाइन हो रही है सेशन, तो अब हमारे पास यही एक तरीका है कि हम अपनी ग्रुप फोटो को ऑनलाइन लें। तो तलहा मेरे साथ जो है मेरे डेप्टी मैनेजर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गैलरी व्यू में हमें लेके जाएं और हम पूरे ग्रुप की एक फोटो लें, और फिर हम सबको ये फोटोग्राफ भेजेंगे भी। कैसे जी और आप स्क्रीन शेयरिंग को जरा ऑफ कर दें, क्योंकि आप ताकि आपकी प्रेजेंटेशन चली जाए और गैलरी व्यू में सबकी पिक्चर आ जाए। जी मैं करता हूँ। हमने इस सेशन को रिकॉर्ड भी किया है और हमारा एक ओडी का पोर्टल बना हुआ है, मोस्टली लोगों को पता ही है, और इंशाल्लाह ये पूरा सेशन हम उस पे अपलोड कर देंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉइज हु वर अनेबल टू जॉइन अस फॉर व्हाटएवर रीजन। हम इसको पूरे 1.5 घंटे के सेशन को अपलोड करेंगे। सो हमारे पास इस वक्त गैलरी व्यू आ रहा है, तो तलहा आई वुड रिक्वेस्ट यू, मेरे साथ तलहा बैठे हैं हु इज डेप्टी मैनेजर ओडी। तलहा इज वेरी मच पार्ट ऑफ माय टीम। तलहा आप एक ग्रुप फोटो हो जाए जी, से चीज स्माइल चीज जी तलहा हो गया। थैंक यू वेरी मच। सो सबका बहुत शुक्रिया, और स्पेशली ऑन आपका एक दफा फिर से शुक्रिया अदा करूंगा, सब पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करूंगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम और सेशन लाते रहेंगे। बल्कि मैं इसी के टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन मैं अनाउंस कर दूं कि मोस्ट लाइकली फ्राइडे को हमारा एक और सेशन आ रहा है, जिसमें हमारे 2 और गेस्ट रिसोर्स आ रहे हैं। वन इज फ्रॉम कराची, वन इज फ्रॉम लाहौर, वन इज फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर हाउस डायरेक्टर HR, and one is from the textile company, very well renowned textile company from HR, GMH, 2 लोग HR के आएंगे, तो उसमें भी आप लोग जरूर आइएगा और अपनी नॉमिनेशन भेजिएगा। जज़ाकल्लाह है, सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम।